Good morning, children. Let's wait for a minute, then we'll start. If there's anyone else who's joining us, otherwise we'll start. Yes, Vichi. Now, since we have classes for 2 more days, let us study something. I just wanted to discuss a few things with you. Uh, I hope you know the syllabus for first term. Does anyone know the CBSE prescribed syllabus for first term? Yes, ma'am. Okay. So, can we match the chapters today before we start with something? I'll give you 1 minute. Those who do not know, please check out. If you have somewhere written, well and good. If you don't have, check it out on the net. Please take out. Okay, 1 minute and then I'll discuss. Yes, Peter, ready? How many total Yes, ma'am. chapters? I know you people had got panicky because we had covered most of the chapters in the second term. So let's do it one by one. How many chapters are there total? 8 chapters, correct? Hmm? Yes, ma'am. Yes, there are 8 chapters. Now let us put a tick in front of the chapters that we have done. November last week is what we are expected to have our exams. So let's go comfortably. The only problem is that 11th class ka exams we have early beta. We start the session on 1st of March or somewhere. So that is why we need to complete the syllabus early in class 11th. You don't have your exams in April, no? We'll start the session 1st of March only. Chalo, chapter 1 is living wall. Is it done? Yes, ma'am. Okay. Chapter 2 is biological classification. Is it done? Yes, ma'am. Okay. Others don't know only whether it is done or not. No response. Chapter 3, plant kingdom. Ma'am, done. Yes. Chapter 4 is animal kingdom. Done. Yes. Chapter 5, morphology of flowering plants. Done. Done. Then we have chapter 7, structural organization in animals. Not done. This is not done. Chapter 8 is cell. Done. Done. Yes. And chapter 9, biomolecules. Done. Done. So we are left with only one chapter, structural organization in animals. In that also quite a bit of part is deleted. And there's a lot of deleted portion in this. I have taken up everything. But whenever there's going to be an assessment later, remember that
we'll focus on NCERT. तो NCERT में तो ऐसा कुछ ज़्यादा है भी नहीं है, that उसमें से भी हम delete करें बैठ के. So that is why even if you get less marks in 11th, it's okay. But you should not miss out on any of the topics. However, in this chapter, there is one part that is cockroach. That has been deleted for years now. So that part is not generally taken up, but other things we have. Up to beta 2 दिन we are going to have regular classes only. Exam to postpone हो गया आपका ये वाला biology. We'll have to put it somewhere in the middle now. Otherwise, we'll have problems. Okay. We're going to start with structural organization in animals. You remember we did a chapter plant kingdom. In that we had certain terms: diploblastic, triploblastic, pseudocoelom, frucoelomes. Once we understood all the words, then it was very easy for us to describe each category of plant. Exactly same thing we are going to have here also. We're just going to understand certain terms which are important. And then automatically the chapter becomes very easy for you. What is more important is just the terms bit. Once you get to know, yes, once you're okay with the terms, then it will be easier for you to understand. So let's start. Let's define tissue. Am I audible and clear, Vida? Yes, ma'am. Okay, fine. Let's start. What is tissue? A group of similar cells having a specific function and origin. Class 9th, I think you must have done this, a little bit about this. So similar cells, if you see, these cells don't look similar, but they are almost similar in structure and in function. That is why we call them as similar. देखने में बिल्कुल similar नहीं लग रहे हैं, ये छोटा है, ये बड़ा है. तो similar का मतलब यहाँ पे similar triangles and congruent triangles पढ़ा था हमने in maths. I don't know 9th or 10th. What is the difference between similar triangles and congruent triangles? Who will tell me the difference between similar triangles and congruent triangles? 10th में पढ़ा था, 9th में पढ़ा था. Anmol, good morning. गुड मॉर्निंग मैम. Similarity of triangles कौन से क्लास में था, 9th में कि 10th में? मैम 9th. 9th. ईशान, good morning. Similarity and congruence पढ़ा है. Difference बताइए बेटा. Two similar triangles and two congruent triangles में क्या difference होता है? If I give you two triangles and I say check करिए, they are similar or they are congruent, तो कैसे check करते हैं? कैसे पता लगता है? Why I am saying this is, ये similar word आ रहा है, ये और ये कहीं से भी similar नहीं लग रहे cells. देखिए कितना छोटा है, कितना बड़ा है, तो ये similar कैसे कह सकते हैं इसको? If you understand the concept, the difference between similar and congruent triangles, you will understand this also. जल्दी बताइए, जल्दी. Even if it is wrong, I am absolutely okay. कौन बताएगा? Nobody remembers. You must be wondering. We have already left maths in class 10th, and then why every time we get stuck on maths only? We are asked questions on maths only. देखो बेटा, similar triangles have same shape and same shape, but sizes are different. Shape same होना चाहिए, मतलब triangle ही होना चाहिए. Shape same होनी चाहिए, but size का difference हो सकता है. एक बहुत छोटा, एक बड़ा है अगर, तो हम उसको बोलेंगे the triangles are similar. बट अगर शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, तब हम बोलते हैं कि ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. सो अंडरस्टैंड द डिफरेंस. शेप सेम है और साइज भी सेम है, देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. बट अगर शेप सेम है बट साइज अलग अलग हो सकता है, देन वी कॉल द ट्रायंगल्स एज सिमिलर ट्रायंगल्स. तो अब यहाँ देखिए, कुछ कुछ आप देखेंगे ऑलमोस्ट शेप इनकी सेम रहती है, साइज अलग है. सो दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट सेल्स. व्हिच काइंड ऑफ सेल्स? See this word, similar. Okay. Now we have animal tissues classified into four main categories: epithelial, connective, muscular, and neural tissues. Epithelial tissue, commonly called as epithelium, it has a free surface that faces body fluid or the outside environment. ये भी epithelium है, ये भी epithelium है.
सरफेस बिल्कुल फ्री है, इसके ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है आपको। या तो ये क्या करेगा, बॉडी फ्लूइड, ये हमारा बॉडी फ्लूइड समझ लीजिए, अंदर बॉडी के पार्ट्स है जिसमें फ्लूइड है। तो या तो ये एपिथेलियम इस तरफ को फेस कर रहा होगा, या ये वाली अगर लेयर है तो वो आउटसाइड एनवायरनमेंट को फेस करती है। सो वी हैव बोथ द काइंड्स। ये देखिए एपिथेलियम है हमारा। सो या तो ये इधर को फेस कर रहा है, दिस इज द बॉडी फ्लूइड, ये हमारे बॉडी के सेल्स हो गए, ये हमारा फ्लूइड हो गया। सो आइदर दिस लेयर में फेस द बॉडी फ्लूइड, या फिर इट इज फेसिंग द आउटर एनवायरनमेंट। इज इट ओके? अगर हम इस पार्ट को आउटर एनवायरनमेंट मान लेते हैं और ये बॉडी फ्लूइड है, ब्लू ब्लू कलर से फ्लूइड है, तो आइदर इट इज फेसिंग द बॉडी फ्लूइड और इट इज फेसिंग द आउटर एनवायरनमेंट। Covers or lines the body parts. Main function is it makes a lining, protective lining on the parts of the body. Cells are compactly packed with little intercellular matrix. ये देखिए, cells are so closely packed. Intercellular space ही बहुत कम है, so obviously intercellular matrix जो है वो बहुत ही कम होगा। Matrix, intercellular matrix मतलब जो liquid होता है between two cells, intercellular spaces पे, उसको बोलते हैं matrix. What is that called? Matrix. And matrix कैसा होगा, किससे बना होगा, this all depends upon the function of the cells. So here we hardly have intercellular matrix. What is the matrix of blood? Matrix of bones? The matrix of blood is plasma. Yes, matrix of blood is plasma. Very good, excellent. It is a fluid. So beta basically 9th class में ही शायद पढ़ा है, between two cells जो space होती है उसको बोलते हैं intercellular space, एंड जो भी यहाँ पे लिक्विड या जेल लाइक सब्सटेंस भरा रहता है दैट इज नोन एज मैट्रिक्स। तो यहाँ पे तो स्पेस ही बहुत कम है, इंटरसेलुलर कॉम्पैक्टली पैक्ड है, सो मैट्रिक्स भी बहुत कम है। एपिथेलियल टिश्यू अगेन ऑफ टू टाइप्स, सिंपल एंड कंपाउंड। इफ यू हैव अ सिंगल लेयर जैसे ये दिख रहा है, सो दिस इज अ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। अगर बहुत सारी लेयर्स है 1 2 3 एक के ऊपर एक, सो दिस इज नोन एज कंपाउंड और इट इज मल्टी लेयर। आई थिंक स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम नाम से आपने क्लास 9th में इसको पढ़ा होगा। When the epithelial tissue is found in layers, one over the other, it is known as stratified epithelial tissue. I think you must have done this word in class 9, stratified. तो वो वही चीज है बेटा, ये कंपाउंड है। दिस इज सिंपल सिंगल लेयर है, एंड ये हो गया मल्टी लेयर हो गया तो कंपाउंड हो गया। सिंपल एपिथेलियम आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये देखिए ये सब सिंपल एपिथेलियम, इनमें सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। इट लाइंस बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स। इट कवर्स द कैविटीज, ट्यूब्स. Basal structural modifications of cell simple epithelium is again of 3 types. Shape पे depend करेगा, squamous epithelium, cuboidal epithelium and columnar epithelium. Squamous epithelium ये देखिए बेटा फ्लैट सेल्स है, ये साइड में देखिए येलो वाले, ओके, ऑलमोस्ट फ्लैट सेल्स, बाउंड्रीज बिल्कुल इरेगुलर है। देखिए ये ऐसी थी फिर ऊपर चली गई फिर नीचे आ गई, सो बाउंड्री इज वेरी इरेगुलर। Where will you find them? You will find them in the walls and the lung alveoli. Okay, walls of the blood vessels and the lung alveoli. फंक्शन क्या है? डिफ्यूजन बाउंड्री। सिंगल सेल है बेटा, सिंगल लेयर है तो डिफ्यूजन बहुत इजीली हो जाता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है ब्लड में बहुत इजीली हो जाता है, बिकॉज इट हैज हाउ मेनी लेयर्स? सी ओवर हियर, फ्लैट सेल्स हैं, सिंगल लेयर सेल्स हैं, so diffusion is very easy. Oxygen comes inside, what goes out? Tell me what goes out from the blood vessels? Carbon dioxide. Yes. So बेटा ये जो एक्सचेंज कराता है दैट इज स्क्वैमस एपिथेलियम। फ्लैट सेल्स हैं, सिंगल लेयर है तो डिफ्यूजन बहुत इजीली हो जाता है। स्क्वैमस एपिथेलियम ये देखिए, ये है आपका स्क्वैमस एपिथेलियम। ये जो पिंक कलर के सेल्स दिख रहे हैं ये वाले सारे, ये इसको देखो ठीक से, दिख ही रहा होगा। देखिए फ्लैट है ये बिल्कुल, सेल्स कैसे हैं? फ्लैट है एंड सिंगल लेयर है आपके। चलो कम टू क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूब लाइक सेल्स, शेप देखो बेटा अलग हो गई, ये ऐसी थी फ्लैट फ्लैट, अब यहाँ देखो ये क्यूब लाइक सेल्स है ये सारे के सारे। Where will you find them? In the ducts of the glands and the nephrons.
नेफ्रॉन याद है, किडनी का स्ट्रक्चर, आई थिंक क्लास 10th में ही करा होगा. You will find them in the glands and you will find in the tubular part of the nephrons. Bowman's capsule अगर याद होगा कुछ थोड़ा बहुत, Bowman's capsule, याद है Bowman's capsule? Yes, ma'am. Okay, if this is Bowman's capsule, तो ये जो रेड रेड होता है बीच में, इसको क्या बोलते थे? क्लास 10th में शायद पढ़ा. Glomerulus. Yes, excellent, glomerulus. This is Bowman's capsule, this cup shaped structure, ये glomerulus हो गया. और ये जो इससे नीचे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, ये वाला, इसको बोलते हैं ट्यूब्यूल. व्हाट इज दिस कॉल्ड? ट्यूब्यूल. तो ये जो सारा पार्ट है बेटा ट्यूब्यूल वाला, इसको ट्यूबुलर पार्ट बोलेंगे. और ये पूरा मिला के हमारा नेफ्रॉन बन गया. तो यहाँ पे कौन से सेल्स मिलेंगे? ट्यूब लाइक सेल्स. फंक्शन इज सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन. पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन हैज माइक्रोविलाई. ठीक है. इफ यू टॉक अबाउट द प्रॉक्सिमेटेड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये जो आपका ये है, आपका ये जो ट्यूब्यूल है, देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. दिख रहा है आपको? ये सारा का वारा, ये डिसेंडिंग लिम्ब है नेफ्रॉन का. शायद 10th में थोड़ा बहुत याद होगा. ये नीचे जाता है, इसे डिसेंडिंग लिम्ब बोलते हैं. जो ऊपर जा रहा है ये क्या है? असेंडिंग लिम्ब. ये जो नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है. अब यहाँ देखिए, ये आ गया. फिर आपका कनेक्टिंग डक्ट्स है. ठीक, ऐसे जाता है. तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल दो होते हैं बेटा, डीसीटी एंड पीसीटी. प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टेंट कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. जो बोमेंस कैप्सूल के पास है प्रॉक्सिमल, ठीक है. और जो दूर है ये वाला, जो मोड़ यहाँ पे जहाँ मुड़ते हैं ना, ये दो टर्म्स है. तो जो बोमेंस कैप्सूल के पास होता है प्रॉक्सिमिटी में होता है. इन इंग्लिश द वर्ड वी यूज प्रॉक्सिमिटी व्हिच मींस नियर बाय. तो जो बोमेंस कैप्सूल के पास ही है बिल्कुल, तो ये वाला हो गया हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. और ये जहाँ पे एक टर्न यहाँ पे भी मुड़ रहा है, देखिए आप यहाँ पे, इसको हम डीसीटी बोलते हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. डिस्टेंस पे है ये, किससे? बोमेंस कैप्सूल से. तो इसको ऐसे याद रखिए, ये हमारा ट्यूब्यूल स्टार्ट होता है, तो जब ये बेंड करता है नीचे को जा रहा है, तो यहाँ पे दो ट्यूब्यूल्स बनते हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे. ये प्रॉक्सिमिटी में है, पास है इसके, दैट इज व्हाई दिस पीसीटी. ये दूर है, इसको हम डीसीटी बोलते हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. अब पीसीटी एंड डीसीटी में जो पीसीटी है, यानी ये वाला जो पार्ट है, इसको ऊपर करके थोड़ा बड़ा करके देखेंगे हम. सी ओवर हियर, दिस कंटेन्स माइक्रोविलाई. ये देखिए, इसमें ये डीसीटी है. डीसीटी को बड़ा करके दिखा रहे हैं. यहाँ पे आपको माइक्रोविलाई नहीं दिखाई देंगे. दिख रहे? देखो माइक्रोविलाई ये है. अंदर ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, ये देख रहे फोल्डिंग्स. इफ आई गेट माई कर्सर एट द राइट प्लेस, ये गोला गोला खाली स्पेस है, इसके बिल्कुल इधर ये जो दिख रहे हैं, ये दीज आर माइक्रोविलाई. आप इसको देखिए, इसके गोले में ये जो बाउंड्री दिख रही है, यहाँ पे आपको विलाई दिख रहे हैं, कोई फोल्डिंग्स दिखाई दे रही है? देयर इज नो फोल्डिंग. So microvilli are found in PCT or DCT of a nephron tubule. PCT. Really? Where will you find the microvilli? PCT or DCT? PCT. बेटा PCT. PCT is proximal convoluted tubule, मतलब जो बिल्कुल पास में होता है वोमेन्स कैप्सूल के यहाँ पे. So this is cuboidal epithelium. लास्ट है आपका कॉलमनर एपिथेलियम. कॉलम जैसे टॉल सेल्स हैं. न्यूक्लियाई बेस पे होते हैं, ये देखिए, न्यूक्लियाई लोकेटेड एट द बेस. Free surface may have microvilli. सब में नहीं होता, but of course some of them may have microvilli. You will find them in the stomach and intestine. Function is secretion and absorption. ये intestinal tract है आपका. Okay, I'm giving you 1 minute. Quickly, let's revise once again. I am showing it to you. पहले ये वाला देख लीजिए. सबसे पहला, we had 3 kinds. 1 मिनट स्लाइड छोड़ दे रहे हैं. आप स्क्वैमस एपिथेलियम देखिए बेटा अच्छे से, क्योंकि हम लोग बेसिकली लर्न करते आए हैं, जूनियर क्लासेस में देखा नहीं है, सो याद करना मुश्किल है. Let's have the main features of this once again. We are talking about which epithelium?
स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस मतलब स्क्वायर की तरह, फ्लैट। बाउंड्रीज याद रखिएगा, ये फिगर तो आपको याद रहेगा, द बाउंड्रीज आर इरेगुलर। सिंगल सेल है, लेयर वॉल्स बहुत ही थिन है, सो ऑब्वियसली दे आर इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन। सो वेयर आर वी गोइंग टू फाइंड देम, ये याद रहेगा, ये वॉल्स हैं, वॉल्स ऑफ द लंग एल्वियोलाई एंड ब्लड वेसल्स। ये आपके ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। ये पल्मोनरी आर्टरी हो गया, ये पल्मोनरी वेन को जा रहा है, ओके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। सो डिफ्यूजन हो रहा है। देखिए पल्मोनरी आर्टरी कौन सा ब्लड लेके आती है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। सर्कुलेटरी सिस्टम इन क्लास 10th अगेन, यूल से मैम सब 10th का पूछते रहते हैं। एक्चुअली आप लोग का 10th ऐसे हो गया ना, सीडो 10th का एंड, दैट इज वाई। हाँ जी बच्चे बताइए, पल्मोनरी आर्टरी कौन सा ब्लड लेके आता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड? बेटा पल्मोनरी वर्ड हमेशा एक्सेप्शन होता है, एंड पल्मो मतलब होता है लंग्स। तो लंग्स में अगर हम ब्लड लेकर के आ रहे हैं तो ऑब्वियसली कौन सा लेकर के आएंगे, वहां पे तो ऑक्सीजनेशन होता है ना लंग्स में। तो इसको लर्न नहीं करना है, रिमेंबर दिस वर्ड पल्मो, पल्मो मीन्स लंग्स। और एक और वर्ड याद रखिए कि सर्कुलेटरी सिस्टम में पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन एक्सेप्शंस होते हैं। आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, बट देयर इज वन आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। सो रिमेंबर पल्मोनरी आर्टरी कौन सा ब्लड लेके आएगा, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड? Deoxygenated. यस, बिकॉज लंग्स में लेके आना है पल्मोनोलॉजिस्ट, और डॉक्टर हु डील्स विद लंग्स क्या बोलते हैं उनको, पल्मोनोलॉजिस्ट। सो पल्मो मीन्स लंग्स, लंग्स में ऑक्सीजनेशन होता है तो फिर हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आएंगे। ये देखिए उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है, CO2 सब वापस चला जा रहा है इसके अंदर, एंड जो ब्लड अब जा रहा है वो रेड दिखा रहे हैं, दैट मीन्स दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड अब ये लेकर के कौन जाएगा, पल्मोनरी वेन। इफ यू सी दिस इज एन एक्सेप्शन, नॉर्मली वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड कैरी करता है। आर्टरी में भी यही होता है। प्लीज सी द स्लाइड, आई एम गोइंग टू आस्क यू फ्यू थिंग्स अबाउट दिस। Yes, dear. Squamous epithelium, what is the shape of the cells? हाँ जी बच्चे बोलो, what is the shape of the cells? Ma'am, flat cells. Yes. What about the boundaries? Ma'am, they have irregular boundaries. Good. They have irregular boundaries. You can see it very clearly. And the main function is what? Diffusion of oxygen in. Diffusion. तो कहाँ पे मिलेंगे बेटा ये? Ma'am, blood vessels, lung alveoli. Exactly. Now move on to the second one, that is cuboidal epithelium. मैं थोड़ा फिर से कर देती हूँ. They're cube-like cells. You will find them in ducts of glands and nephrons. ये nephron है. Function is secretion and absorption. इसमें एक स्पेशलिटी है कि PCT has microvilli. ये PCT है, ये DCT है. अगर आप देखो तो यहाँ पे microvilli नहीं है, यहाँ पे है. Very quickly, please see the cuboidal epithelium now.
Yes, dear. Move on to the last one. That is columnar epithelium. What epithelium is this? Columnar. नाम से ही पता चलता है columns. That means it is made up of long, tall cells. Nuclei देखिए बेटा ये green वाले. The nuclei located at the base. They may have microvilli and you will find them in stomach and intestines. So let us talk about modifications of columnar cells. ये वाले जो cells है बेटा इनके modifications पढ़ लेते हैं. Some of them have cilia on their surface. See, ये tall column-like cells हैं. So this is a modification of its cells, cuboidal columnar cells. देखो जल्दी. They have cilia over here. तो हम इनको बोल देते हैं ciliated epithelium. What do we call them as? Ciliated epithelium. मिलेंगे कहाँ पे ये ciliated epithelium? Bronchioles and fallopian tubes. Bronchioles and fallopian tubes. What is their function? To move particles of mucus in a specific direction over the epithelium. Supposing you eat something which is harmful, with the food something is entering, some bacteria or some protozoa is entering. तो ये सीलिया क्या करते हैं बेटा, उसको पुश करते हैं, पुश करके नीचे भेज देते हैं ताकि वो पुश आउट जल्दी हो जाए एंड इट इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी. या फिर म्यूकस, अगर म्यूकस डिपॉजिट हो रहा है तो वो भी उस चीज को भी पुश करना है, अदरवाइज रेस्पिरेटरी ट्रैक में म्यूकस डिपॉजिट हो जाएगा तो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगा. सिमिलरली सम अनवांटेड थिंग एंटर्स द फैलोपियन ट्यूब. ओके, ये देखिए ये वाला, इसको क्लियर रखना जरूरी है, द फैलोपियन ट्यूब, बिकॉज फर्टिलाइजेशन होता है तो यहाँ से पास ऑन होके आपका स्पर्म है. सो दिस पैसेज हैज टू बी केप्ट क्लियर, लाइक आपका ये ट्यूब क्लियर होना चाहिए, ब्रोंकाई. तो यहाँ पे एनी अनवांटेड मैटर, म्यूकस कुछ भी जमा होता है तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स उसको पुश करते हैं ताकि वो बाहर निकल जाए. सो इफ दीज columnar cells have this modification, we call it as a ciliated columnar epithelium. Second modification is glandular epithelium. Sometimes ये folds बना लेते हैं अपने ही walls के अंदर, देखिए folds बन जाते हैं, gland जैसे structure बना लिया है इन्होंने. Okay, and then they start acting like glands, कुछ secretion करने लग जाते हैं. Okay, please see this. ये थे हमारे, ये कौन से cells थे? Columnar cells हैं ये. देखो बीच वाला तो इसमें modification नहीं हुआ है. कोई कोई ऐसे होते हैं जो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाते हैं, जैसे ये फोल्ड होगा, ये दो फोल्ड हो गए, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स बना दिए, बाकी नॉर्मल कॉलमनर है. एंड नाउ बिकॉज दे बिकम सैक लाइक, दे स्टार्ट फंक्शनिंग लाइक अ ग्लैंड, कुछ सेक्रेशन करने लगते हैं. एग्जाम्पल इज व्हाट? गॉबलेट सेल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. ये देखिए दीज सेल्स, गॉबलेट सेल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. एंड सेकेंड, इफ यू सी, क्लस्टर ऑफ सेल्स इन द सलाइवरी ग्लैंड्स. सो बेसिकली है कुछ नहीं है, यही वाले एपिथेलियम है, ये वाले कॉलमनर ये. बट अगर इनके ऊपर सीलिया आ गया, ये देखिए, सो सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम फंक्शन हो गया टू पुश द म्यूकस. एंड अगर ये फोल्ड होके ग्लैंड्स की तरह बन जाते हैं तो सेक्रीशन करने लगते हैं. यू रिमेंबर दिस, लाइक सलाइवरी ग्लैंड्स, दे स्टार्ट सेक्रेटिंग सलाइवा. ओके, so these are modifications of these cells, glandular epithelium, and second is जो हमने पहले पढ़ा था, ये कौन सा था? ciliated epithelium. So there are two modifications of epithelium cells, children. One is ciliated epithelium, यानी अगर उसमें cilia आ गया तो ciliated epithelium. You will mainly find ciliated epithelium in the windpipe and in the fallopian tube, because इन दोनों passages को clear रखना जरूरी है. So any unwanted particles, mucus, इसको push करने के लिए cilia काम आते हैं. And second is glandular epithelium. Sometimes the epithelium folds inwards and it forms glands. Then it is called glandular epithelium. अभी gland बन गए यानी ये salivary glands बन गए. So they will start secreting what? They'll start secreting saliva. Based on the mode of pouring the secretion, we know that the glands are of two types. Exocrine glands, they release secretions through tubes. Exocrine glands secrete mucus, saliva, earwax, oil, milk, digestive enzymes, सब कुछ. Exocrine glands, प्रॉपर बेटा इनका जो सेक्रेशन है वो डक्ट में जाता है. किस में जाता है? डक्ट्स में जाता है. एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर नोन एज डक्टलेस ग्लैंड्स. इनमें कोई डक्ट्स नहीं होते हैं. दे जस्ट प्रोड्यूस व्हाट? दे प्रोड्यूस हार्मोन्स. दे प्रोड्यूस हार्मोन्स. ये देखिए बेटा ये वाला, ये क्या है? ये डक्ट है.
आईज से कनेक्टेड है आपका, दिख रहा है आपको? ये देखिए ध्यान से, ईयर वैक्स जो प्रोड्यूस हो रहा है, सी दिस, ईयर वैक्स सीधा निकल के ऐसे नहीं है कि पूरा बाहर ओपन स्पेस में जाता है। कहाँ जाता है ये ईयर वैक्स? पहले आप इसको समझ लो, देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। Yes, beta. How many kinds of glands? Based on whether the secretion is outside or inside, we have 4 kinds of glands. Sorry, 2 kinds, exocrine and Endocrine. yes. Endo, exo and endocrine. Endocrine are ductless glands, मतलब कोई duct या pipe like structures नहीं होते. ये देखिए ducts. Okay, sweat gland. This is it. Understood the difference now? कोई भी secretion अगर निकल रहा है and duct में जा रहा है, when I say duct, I mean a tube-like structure. Then it is an exocrine duct. And अगर कोई tube attached नहीं है, then it is endocrine. Remember, hormones mainly 99% are produced by ductless glands. Simple epithelium is what we have done. Compound epithelium is made up of layers of cells. Secretion absorption function is very less. They cover the dry surface of skin, moist surface of buccal cavity, ये वाला पूरा part. Pharynx, inner lining of ducts, salivary glands, pancreatic ducts. The function is protection against chemical and mechanical stress. Obviously, बेटा इतनी layers बनाई है, तो function तो हमेशा क्या होगा? Protection ही होगा. Okay, I will not start with cell junctions today. I'll just do it till here only, because cell junctions वैसे तो छोटा सा है, एक slide है. Let me take up. We still have about 7 minutes. The junction that provides structure and functional link between adjacent cells. 2 cells हैं बेटा, बनाता है, उसको हम cell junction बोलते हैं. There are 3 types of junctions: tight junction, adhering junctions, and gap junctions. Okay, tight junctions. They help to stop substance from leaking across the tissue. ये देखिए, ये tight junctions हैं, ये वाले. ठीक है, बिल्कुल दो cells हैं, मिलके tissue बना लिया है, नो? इतने टाइट है that they stop substance from leaking across the tissue. एक टिश्यू से बाहर नहीं जाएगा substance. So these kind of junctions are known as which junctions? Tight junctions. ये एक टिश्यू है, ये एक टिश्यू कर लो इसको, यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, टाइटली बंद कर दिया है, तो इट विल स्टॉप अ सब्सटेंस एक टिश्यू से दूसरे सब्सटेंस में, दूसरे टिश्यू में नहीं जाने देगा. दिस इज एडहेरिंग जंक्शंस. ओके, ये वाले देखिए, ब्लू वाले. परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर. पास में बीच में स्टिकी टाइप बन जाते हैं सीमेंट की तरह, जैसे 2 ब्रिक्स को हम जोड़ते हैं सीमेंट लगा के, तो कुछ वैसा ही. तो ये सीमेंट की तरह काम करते हैं ताकि दोनों सेल्स पास पास रहें. ओके, दीज जंक्शंस आर नोन एज एडहेरिंग जंक्शंस. एंड ये वाले जो आप देख रहे हैं, ये गैप जंक्शंस. जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है दोनों सेल्स के साइटोप्लाज्म के बीच में, आयंस का ट्रांसफर हो रहा है, मॉलिक्यूल्स एक यहाँ से वहां जा रहे हैं, अगर कुछ भी मूवमेंट हो रहा है बेटा फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, तो वो किसके थ्रू होता है? Gap junction. Gap junctions. Okay, what are these junctions called? Gap junctions. So nothing, what are junctions? It's very small. If you see, link between 2 cells. एक सेल है, अगर हम इसको ये मानते हैं, ये एक सेल हो गया आपका, ये दूसरा सेल हो गया. So इनके बीच में जो लिंक है, these are known as junctions. There are 2 types. पहला वाला कौन सा जंक्शन था? ये बिल्कुल जो कुछ ट्रांसफर अलाउ नहीं करता है, जो वेरी स्ट्रिक्ट. What is the junction, sir? Very good. Tight junction. अब ये 2 सेल्स पास पास हैं, लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि हमेशा पास रहेंगे.
एंड टिश्यू फॉर्मेशन के लिए सबको पास रहना जरूरी है, तो इनको होल्ड ऑन करना पड़ेगा. वी नीड सम सब्सटेंस विच कैन कीप देम टुगेदर. सो ये जो सीमेंटिंग सब्सटेंस वाला पार्ट आ गया है, सीमेंटिंग का काम कर रहा है, दैट इज विच जंक्शन. Adhering junction. एंड द लास्ट इज गैप जंक्शन. नाम से ही पता चलता है आपको, गैप है यहाँ पे. ये देखिए गैप जंक्शन. गैप होगा तो इजिली साइटोप्लाज्म कनेक्टेड है. देखो बेटा, ये ध्यान से देखो, ये वाला पिंक पिंक, ये वाला पिंक पिंक साइटोप्लाज्म. यहाँ पे देखिए बीच वाले एरिया में भी पिंक दिख रहा है आपको साइटोप्लाज्म. यानी दोनों सेल्स के साइटोप्लाज्म यहाँ पे कनेक्टेड हो जा रहे हैं. तो साइटोप्लाज्म कनेक्टेड है तो रैपिड ट्रांसफर हो जाएगा आयंस का. स्मॉल मॉलिक्यूल, बिग मॉलिक्यूल, सब कुछ इजिली ट्रांसफर हो जाएगा. So should I hide this? What are the three types of junction that we have just done? Tight junctions, Ma'am. adhering junctions, and gap junctions. Yes. Which junction does not allow any substance to move from one cell to the other cell? Tight junction. Tight junction. Which junction allows? Gap junction. Gap junction. And which junction holds the two cells together? Adhering junction. Adhering junction. Very good. Chale beta, that's all for today. We'll continue tomorrow because we hardly have a minute or so left. Connective tissues कल start करेंगे. Why waste time? I thought 2 दिन है, पढ़ लेते हैं, because whenever we'll have time, we'll be able to do revisions at least before your exams in November. Okay? Fine बच्चे? चलो, let's meet tomorrow. Bye dear. Thank you, ma'am. Bye Thank बच्चे. you, ma'am. Bye. God bless.